हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 224 ए। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 224 ए के बारे में। तो ठीक है, स्टार्ट करें। 224 ए कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 224 ए क्या कहता है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। 224 ए says appointment of retired judges at sitting of high court. 224 a appointment of retired judges at sittings of high courts। क्या कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 224 का बताता है उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। ये आर्टिकल वर्णन करता है। 224 ए says appointment of retired judges at sittings of high courts, notwithstanding anything in this chapter, the Chief Justice of a High Court for any state may at any time with the previous consent of the president request any person who has held the office of a judge of that court or of any other high court to sit and act as a judge of the high court for that state, and every such person so requested shall while so sitting and acting be entitled to such allowance as the president may by order determine, and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be a judge of that high court, provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a judge of the high court unless he consents so to do. Unless he consents so to do. Article 225 article says jurisdiction of existing high courts। अनुच्छेद 225 वर्णन करता है कि विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में। अनुच्छेद 225 अनुच्छेद बताता है कि विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में। 225 article says jurisdiction of existing high courts subject to the provisions of this constitution and to the provisions of any law of the appropriate legislature made by virtue of powers conferred on that legislature by this constitution. The jurisdiction of and the law administered in any existing high court and the respective powers of the judges thereof in relation to the administration of justice and the court, including any power to make rules of court and to regulate the sittings of the court and sitting of the court and of the members thereof sitting alone or in division courts,
shall be the same as immediately before the commencement of this constitution, provided that any restriction to which the exercise of original jurisdiction by any of the high courts with respect to any matter concerning the revenue or concerning any act ordered or done in the collection thereof was subject immediately before the commencement of this constitution shall no longer apply to the exercise of such jurisdiction. मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। आर्टिकल 224A and Article 225. अनुच्छेद 224 का संविधान का अनुच्छेद 224 का बताता है उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। क्या कहा जा रहा है इस आर्टिकल में? 224 का में कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति जो किसी भी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति और किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। ऐसा व्यक्ति जिसने इस प्रकार अनुरोध किया ऐसा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। यानी जब राष्ट्रपति आदेश द्वारा उनको अवधारित करता है उस न्यायालय के लिए उस हाई कोर्ट के लिए तब उसको यानी जो रिटायर्ड जज हैं उनकी नियुक्ति के बारे में ये पावर है जो अनुच्छेद बताता है। उसको उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। अच्छा, जितने भी जो विशेषाधिकार हैं न्यायाधीश के अधिकारिता में जो आते हैं वो सब शक्तियां और विशेषाधिकार सब प्राप्त होंगे लेकिन उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। बस ये बात है, न्यायाधीश तो नहीं समझा जाएगा। परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस उच्च न्यायालय के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं देता है तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 225 बताता है कि विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा समुचित विधान मंडल को प्रदत्त पसीना बड़ा निकल रहा है 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा समुचित विधान मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उस विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि और उस न्यायालय में न्याय प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की अपनी अपनी शक्तियां जिनके अंतर्गत न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति और उस न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों का चाहे वे अकेले बैठें या खंड न्यायालयों में बैठें
विनियमन करने की शक्ति है वही होगी जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले थी। परंतु राजस्व संबंधी अथवा उसका संग्रहण करने में आदिष्ट या किए गए किसी कार्य संबंधी विषय की क्या कहा जा रहा है? परंतु राजस्व संबंधी अथवा उसका संग्रहण करने में आदिष्ट या किए गए किसी कार्य संबंधी विषय की बाबत उच्च न्यायालयों में से किसी की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जिस किसी निर्वर्धन के अधीन या उस निर्वर्धन ऐसी अधिकारिता के प्रयोग को ऐसे आरंभ के पश्चात लागू नहीं होगा। तो ये था अनुच्छेद 225 और इससे पहले अनुच्छेद 225 224 ए यानी 224 का। इन दो अनुच्छेद को पढ़ा है। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं पढ़ूंगी नया अनुच्छेद। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।